लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज एंड नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, या कोई ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम डिकोड कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी लैंग्वेज को, कुछ सम टेक्निक्स आर देयर एनीथिंग? श्योर। तो यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में आंसर करना चाहूंगी सौरभ। वन इज पार्ट वन के बॉडी लैंग्वेज रीड करने के लिए व्हाट आर द स्किल्स विच आर नीडेड. Okay, so number one thing कि ये it is very much a part of a biology. We have a part in our brain that helps understand. हम body language decode कर सकते हैं. But the thing is हमें knowledge नहीं है इसमें, so हमें knowledge gain करनी पड़ेगी. Now, two primarily important skills I feel that one should have in order to read a body language is observation skill. Language is when I know what are the principles. तो बॉडी लैंग्वेज का जैसे एक प्रिंसिपल है कि यू कैन नेवर टेक बॉडी लैंग्वेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीनिंग मैं एक इंसान को सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता. मुझे बॉडी लैंग्वेज एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हु दैट पर्सन वाज, और कौन था कॉन्वर्जेशन में, व्हाट वाज द सिनेरियो, and any topic of conversation that was happening. On that basis we can look at the truth and the lie, the genuineness, the openness. But if I don't know the context and I start putting everything, हर छोटी चीज का मैं कुछ कर दूं, then I'm really going very wrong. So let's say for example if the presidents of all nations are meeting together, you know the scenario, ये बहुत ही high leadership power pack scenario है. My interpretations will go accordingly. But let's say if it is a wedding or let's say it's an interview, my interpretation will be very different. So number one thing, you cannot take context out. Second है communication बहुत important है. तीसरा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्रॉस कल्चरल भी होती है. सो वाइल इट इज very American or European or Western to, you know, this is the formal handshake, this is a cultural emblem in India कि इंडिया में लोग इस तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. in different communities it is आदाब, some people पैर छूते हैं, जापानीज में हम सिर झुकाते हैं. So these are my cultural emblems which will vary, but my body language basics which are my facial expressions. So there are 7 facial expressions जो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ. You know, anger will always be these 2 vertical lines that you see. Sadness will always be. So you get few basics right and that's how you start reading and developing body language. तो मैं इसे ऐसे analyze करती हूँ कि one is the basic level, the intermediate level and advanced level पे जाके आता है lie detection, and that very few people end up reaching there. But yeah. To read the understand the meaning in between the lines or what's being said. Definitely I am going to call you. I will definitely mute the other person. मैं एक mute mode पे body language read करूंगी कि इस वक्त ये intention ये कह रहा था. Then I will try to match the words. If they sync, then I know where I stand. But if they do not sync, तो मुझे पता है ये mismatch है. I cannot trust this person. So one is observation skills. जो हैव इंट्यूशन. और आप कभी भी कोई भी चीज ऑब्जर्व करो या टीवी पे आप कोई लाइव देख रहे हो, लाइव इंटरव्यू, try to mute from the remote and see what is happening. So this way you will at least start developing as to how can I go about understanding what is happening. जी. तो काफी अच्छा हमने टिप्स प्रोवाइड किया टू डिकोड बॉडी लैंग्वेज. एक से दो टिप्स मैं छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जनरली हम किसी भी फर्स्ट टाइम किसी से बात करते हैं तो अगर आपको पता करना है कि सामने वाला आपसे इंटरेस्ट लेके बात कर रहा है या वो फोर्सफुली बात कर रहा है या वो कुछ बेनिफिट के लिए आपके पास आया है, तो अगर वो आपसे क्लोज आके बात कर रहा है या आपका हेड आपकी तरफ टिल्ट कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं ही इज इंटरेस्टेड इन योर टॉक. मतलब वो आपसे क्लोज, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो आपको ब्लॉक करेगा या तो अपने हैंड्स दोनों बात करते समय क्लोज कर लेगा, वो आपसे दूर जाएगा. तो ये चीजें से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सामने वाला जनरली सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. जब आप सेल्स करने जाते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो सामने वाला आपकी बातें कितनी इंटरेस्टेड सुन रहा है. हो सकता है कि वो सिर्फ आपसे यस कर रहा है लेकिन माइंड में वो उसका कहीं और है, तो वो आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. वो उसका माइंड या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बार बार हेड वो दूसरी तरफ देख रहा है, आपको देख नहीं रहा है और आई कांटेक्ट नहीं करेगा. वो सामने वाला पर्सन आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जब आप बात कर रहे हैं तो वो आई कांटेक्ट कहाँ है उसका. जनरली आपने देखा होगा बैक बेंचर्स जो होते हैं स्कूल्स के अंदर, उनका आई कांटेक्ट कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं होता है. उनका आई कांटेक्ट जो होता है इधर उधर वो देखते रहते हैं कहाँ से कैसे मस्ती करें. तो उस चीज से आप एज अ ट्रेनर या अगर आप टीचर हैं तो आप गाइड जज कर सकते हैं कि कौन लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर और कौन लोग मस्ती कर रहे हैं.
तो वो जनरली उनका आई कांटेक्ट से इजीली आप पता कर सकते हैं। ये दो छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें उतना कुछ एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, जनरल पीपल भी इस चीज को फॉलो कर सकता है। और थोड़ा बहुत इसमें ये नहीं बोलता मैं एक्सपर्ट है, लेकिन हेल्प हो सकती है उनको जज करने में कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपका अगर सिर्फ 60% रिजल्ट आ रहा है तो उसमें 70% ऐड हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा आपका। ये चीजें आप फॉलो करेंगे उससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ये चीजें बेनिफिट रहेंगी। और जनरली ये चीजें हम कर सकते हैं अपनी आम लाइफ में, इसके लिए कोई आपको बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें हैं बीइंग क्रिएटर, जिसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने 68 एपिसोड्स कर चुके हैं लास्ट 1 ईयर में, और ये हमारा 69th एपिसोड है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, या आप हमारे प्लेटफॉर्म के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आपका कैसा व्यू है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है फॉर टुडे? Okay. So one, definitely social media is the way to go, and thanks to COVID, we are going to stay online for quite some time. तो अगर लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें, सो यू नो द लीडर हेड्स आई हैव ऑलरेडी सेड इट कि जैसे लोगों ने रिवेंज ट्रैवल शुरू किया था, अब रिवेंज ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे. सो फॉर 1-2 years देयर विल बी लॉट ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग्स व्हिच विल हैपन, बट अगेन दे आर गोइंग टू गो बैक टू वर्चुअल. एटलीस्ट 80% ऑफ योर लर्निंग आज के बाद विल बी ऑनलाइन. So yes, you have reached close to 68, right? Am I correct? This is the 68. May you reach more heights. You're doing a fabulous job. 69. आज लोगों को awareness की जरूरत है, लोगों को 69th today, yes. So लोगों को awareness की जरूरत है, लोगों को platforms की जरूरत है to showcase, and the reach has increased more because of digital. So मैंने भी कुछ similar ही किया था. It is lot of effort that you're putting in. I know it is not easy. You're formally dressed. There's the respect that you're showing in all the videos that you're doing. So just keep it up. I'm sure there is already a momentum, and may you reach more. Good night to all.